کی ہے، نہ ہی کارپوریٹروں کی، میئر صاحبہ کی، ڈپٹی میئر صاحبہ کی، کسی کی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی مدد چاہیے ہم آپ کے لیے ہم وقت کھڑے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ شہر ایک عام فہم مالیگاؤں میں یہ ہو گئی ہے کہ 31 مارچ تک ہی میپنگ کا کام ہوگا، اس کے بعد میپنگ کا کام نہیں ہوگا۔ اس پر جب تحصیلدار صاحب سے اور پران صاحب سے بات کی گئی تو انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جب تک SIR کو لاگو کرنے کی تاریخ نہیں آ جائے گی تب تک زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ آپ لوگ بہت ہی دیر سے جانے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ میں آپ سے صرف 2 بات کہوں گی۔ اسٹیج پر موجود کمشنر صاحب، پرانت آفیسر صاحب اور آفس اور سبھی آفیسران اور BLO صاحب، سب سے پہلے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے مطالبے پر آج جمعہ کے روز جو بہت ہی کام کا وقت ہوتا ہے، آپ لوگ ایک میٹنگ پر بلانے پر آپ لوگ یہاں پر سب موجود ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پورے شہر میں SIR کو لے کر جو سروے کو لے کر عوام میں جو بے چینی ہے، ابھی تک جو داخلوں کے معاملے میں ابھی تک بے چینیاں پیدا ہے، اب یہ عوام میں ایک بے چینی اور پیدا ہو گئی SIR کے معاملے میں، جو آپ لوگوں کا کام ہے کہ عوام میں بتا کر کے کیسے فارم بھر کر اور آپ بہت ہی ذمہ داری سے اپنا کام نبھا رہے ہیں۔ یہ شہر ہمارا ہے، یہاں پر ہندو مسلم سبھی دونوں عوام ہماری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ SIR کا جو سروے آپ لوگ کر رہے ہیں یہ پوری طرح سے ہو، آپ لوگ بخوبی یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ کوئی بھی عوام اس SIR کا جو معاملہ ہے اس سے چھوٹ نہ پائے، ایک بھی گھر، ایک بھی شخص اس SIR سروے کا مطلب جو کام پورا ہو رہا ہے وہ ایک بھی نہ چھوٹنے پائے۔ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ SIR کا سروے جو مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی کمشنر صاحب کی ہے، نہ ہی کارپوریٹروں کی، میئر صاحبہ کی، ڈپٹی میئر صاحبہ کی، کسی کی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی مدد چاہیے ہم آپ کے لیے ہم وقت کھڑے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ شہر ہمارا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی کس طرح سے مدد کریں۔ اس لیے کارپوریشن کی جانب سے اس SIR سروے کے لیے جو بھی مدد آپ لوگوں کو چاہیے، اس کے لیے ہم آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہم ہر وقت آپ کے لیے تیار ہیں۔ ابھی جو اسپیشل میٹنگ کے ذریعے جو آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے SIR کے سروے کے مطابق، اس میں کیا مطالبہ رکھنا چاہیے، کیا ضروری چیزیں چاہیے، کیا مہیا کرنا چاہیے، ہم جلد ہی ایک میٹنگ لیں گے۔ اسپیشل میٹنگ کے ذریعے جو بھی آپ کا جو عمل ہوگا، اس میٹنگ کے ذریعے جو SIR سروے میں جو لائحہ عمل میں پیش آئے گا اس پر ہم اہم فیصلہ لیں گے۔ اور مجھے ابھی ایک کیا کہنا چاہیے آپ لوگوں کے خلاف بولوں یا اور کچھ بولوں کہ ایک میسج آیا ہے مجھے کہ آپ لوگوں کا جو 200 نمبر کی یادی آتی ہے وہ 209 میں چلی گئی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 200 یادی نمبر ہے کہاں۔ اس کے لیے عوام بھی بے چین ہے اور زیادہ تر لوگ آپ لوگ بے چین ہیں۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری خود نبھائیں، جیسے 200 کی یادی جس کے پاس ہے اس کو صحیح سے ایڈریس دے، صحیح سے معلومات دے کہ آپ لوگوں کو کہاں جانا ہے، یا آپ لوگ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں تو ہوتے ہی ہوں گے، عوام کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے لیے میں آپ سے ایک گزارش یعنی میری طرف سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مہربانی کر کے مالیگاؤں شہریوں کو یہ کام کے لیے پریشان بالکل بھی مت کریے۔ بس اللہ حافظ، السلام علیکم۔ ہائی اسکول کے ہیں ان کے لیے بھی آپ جو ہے وہ مینجمنٹ سے اور دوسرے
कलेक्टर ऑफिस से ये कोशिश कीजिए कि वो भी अपनी स्कूल से उनको कार्य मुक्त करके वक्ती तौर पे ये काम में अच्छी से यकसोई से हो पाए, इसके लिए आप कोशिश कीजिए। ये एक बात मैं महसूस करती हूँ, मुसलसल जो शिकायत आ रही है कि अगर किसी हज़ार खोली में यादी का काम लेने वाला अब्बास नगर का BLO है तो वो लोगों के फ़ोन उनको देर रात को जाते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप जानते हैं मालेगांव शहर का आप हिस्सा हैं, ये मालेगांव शहर के मिजाज से आप वाकिफ़ हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लोग जब नींद में से उठते हैं, उनको जब सहूलत मिलती है, कोई ऑफिस टाइम नहीं देखता, इसलिए आपको भी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। लोगों की तलखी का आपको सामना करना पड़ता है, आपके साथ बदकलामी होती है, इसका भी हमको अंदाज़ा है, क्योंकि हम सियासी लोग हैं। हम महसूस करते हैं कि लोगों में इतना डर और खौफ SIR का है कि आपके ऊपर इल्ज़ामात आते हैं कि आप लोग काम दुरुस्त नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं BLOs जो काम बराबर कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो काम नहीं करना चाहते थे लेकिन बिला वजह उन पर जिम्मेदारी दी गई, जिसको वो लोग दिलचस्पी से नहीं कर रहे। इसके लिए हम लोगों ने प्रांत ऑफिसर साहब से और तहसीलदार साहब से बात की थी कि आप फिर से उसको रिशेफल करो लिस्ट को, जिसमें ख़वातीन हैं जो काम नहीं करना चाहती, या जिनका तालीमी आशा वर्कर थी, हेल्थ सेंटर की औरतें थी, जिनका देर रात में काम करना या उम्र के लिहाज से किसी टीचर का काम करना मुश्किल है, तो उनको ये काम की से आज़ादी दी जाए। तो अभी हमने जो तहसीलदार साहब से समझा कि एक लिस्ट नई आने वाली है आज, जिसमें शायद तब्दीली का इम्कान हो, लेकिन हमारा आपके साथ रब्ता करने का मकसद ये है कि आप अगर किसी की तलखी का आप सामना कर रहे हो तो लोग ये भूल जाते हैं कि आप हम में से ही हो। कोई टीचर कोई डिक्टेटरशिप से आया हुआ कोई नुमाइंदा नहीं, आप लोग हम में से ही एक हो, शहर के नागरिक हो। इसलिए आप अगर अपने ही लोगों की सख्ती का सामना कर रहे हो तो उसको मेहरबानी करके आप हुस्न सलूक अपना दिखा के कबूल कर लीजिए। दूसरा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि SIR हेल्थ सेंटर बनाएं, हेल्थ डेस्क बनाएं, जिसमें आप लोगों को सोशल वर्कर, कारपोरेटर्स हजरात और जो लोग कुछ करना चाहते हैं, अदारे के लोग हों, चाहे पढ़े लिखे लड़के हों, जो मदद करना चाहते हैं आवाम की SIR के सर्वे में, वो आपके साथ जुटकर आपकी मदद करके, आपको कोई सियासी स्टेज पे हम नहीं बुलाएंगे, किसी सियासी बैनर के नीचे नहीं बैठाएंगे। जैसा कमिश्नर साहब ने कहा कि जहां बूथ पर वोट देने के लिए स्कूलों में वोटर्स जाते हैं, वहाँ जहाँ हॉस्पिटल सरकारी कॉरपोरेशन के हैं वहाँ, यानी एक जगह ऐसी मुख्तस कर दी जाए कि आपका लोगों से रब्ता और लोगों का आपसे रब्ता आसान हो जाए। हम आपसे किसी तरह का भी ज़बरदस्ती का सलूक, किसी तरह का भी आपके दिल को नागवार गुजरे वैसा सलूक नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि कॉरपोरेशन की जवाबदारी नहीं है कि SIR का सर्वे हो रहा है कि नहीं, लेकिन इस शहर की कॉरपोरेशन की हुदूद में रहने वालों की वोट का सवाल है। इस कॉरपोरेशन के इलाके में रहने वाले BLOs के मुस्तकबिल का सवाल है। कॉरपोरेशन के सर्वेंट जो BLOs हैं, ये उनके मुस्तकबिल का सवाल। इसलिए लोगों को आसानी हो, आपको आसानी हो, इसलिए हम राब्ता कायम करके आपकी मुश्किलात को कम करने का काम कर रहे हैं। देखो, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी आज़ादी और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान जो है वो हर आदमी को बिना तालीमी इम्तियाज़ के, बिना मर्द औरत के इम्तियाज़ के, बिना अमीर गरीब के इम्तियाज़ के वोट देने का हक़। ये सबसे बड़ा हमारी जमहूरियत के सबसे खूबसूरत बाब ये है कि वोट देने का हक़ सबको दिया गया, और ये हमारी जमहूरियत और हमारे दस्तूर को बचाने के लिए सबसे बड़ा ज़रिया है वो वोट देना। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस बड़े हुकूक को बचाने के लिए चुना है तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि लोगों की तलखी के साथ साथ ये आप अपना कानूनी फ़र्ज़ के अलावा आप अखलाकी फ़र्ज़ समझ के इसको खुश असलूबी से पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है तो कॉरपोरेशन की मेयर साहब आएँ, मैं हूँ, कमिश्नर साहब हैं। अगर कमिश्नर साहब किसी
वजह से फ़ोन ना उठा पाए, तो हम लोग जो हैं वो हमेशा दस्तयाब होते हैं। देर रात को भी आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमको कोई सियासी लड़ाई में किसी सियासी फ़ायदा उठाने की नीयत से नहीं, किसी को तकलीफ़ देने की नीयत से नहीं, आप आसानी से अपना काम कर पाए। जहाँ जहाँ कॉरपोरेशन आपको मदद कर सकती है, अभी जो बातें कमिश्नर साहब ने कही, शेख आसिफ साहब ने भी निवेदन दिया है कि स्पेशल महासभा रख के आपके लिए क्या आसानी हो सकती है, आप लोगों के लिए हम लोग क्या सहूलत मुहैया कर सकते हैं, वो हम करेंगे। ये आप समझ लें कि शहरियान और BLO, आप शहरियान से अलग नहीं हो, आप भी शहर का हिस्सा। मैं पिछले दिनों न्यूज़ सुन रही थी, जब उत्तर प्रदेश में SIR हो रहा था और वहाँ पे अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि कई BLOs ने सुसाइड कर लिया बर्डन की वजह से, SIR के दबाव की वजह से। हम ये चाहते हैं कि आप शहर का हिस्सा हो, आपको न कोई दिमागी तकलीफ आए, ना आपको कोई जहनी तकलीफ, ना आपके किसी काम में आपको फिजिकल कोई तकलीफ आए, हम आपके साथ हैं। बस हम ये चाहते हैं कि शहरियान को जो तकलीफ हो रही है या जो होने वाली है, आप उसको खुश उसलूबी से और आप उनकी तलखी देखते हुए भी कबूल कर लें। हमारे यहाँ तालीम का मेयार कम है, जो आवाम है बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, कानूनी तौर पे उनको इतनी समझ नहीं है, लेकिन आप शहर का हिस्सा हो, इसलिए मेहरबानी करके एक सवाब जाराइन के तौर पे एक ऐसा डेमोक्रेसी में बचाने के लिए आप सिपाही हो, ये समझ के आप हमारा कोऑपरेट करें और शहरियान का कोऑपरेट करें। मैं कमिश्नर साहब से एक और अपील करती हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि जो SIR में काम करने वाले लोग हैं, बाद में इस बात का फ़ख्र महसूस करें कि भाई हमने जमहूरियत को बचाने में और मतदाताओं की वोट बचाने में बड़ा काम किया है। तो जब ये काम हो जाए, इसके बाद कमिश्नर साहब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले इनको एक सर्टिफिकेशन भी करें कि इन्होंने ये कारनामा किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जो भी तकालीफ आगे आने वाली है या जो आएगी, मुझे ये समझता है, जितना मैं समझी, कि अगर आप लोग मैपिंग का काम कर लेते हैं तो मैपिंग का काम करने के बाद जितनी ज़्यादा तादाद में मैपिंग का काम होगा, उतना आपको SIR के फॉर्म भरने में रियायत हो जाए। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों का काम हो पा रहा है, जो इस कानून में आ रहे हैं कि पैटर्नल और उनके वालिदैन के नाम के साथ मैपिंग हो जा रही है और जिनका नाम है उनका मैपिंग बड़ी तादाद में हो जाएगी, तो आपको फॉर्म भरने से और लोगों के घरों तक जा कर पूछने में आसानी हो जाएगी। हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको ना किसी दबाव में डालना चाहते हैं, ना किसी तरह की ज़बरदस्ती करना चाहते। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप शहर को और शहर के लोगों को जमहूरी हक दिलवाने में मददगार साबित हो। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, अगर किसी को भी किसी चीज़ की तकलीफ़ हो, कहीं दुश्वारी आ रही हो आवाम की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट से, तो आप हमसे राब्ता कायम करें, हम आपकी मदद करेंगे। एक आम फहम मालेगांव में ये हो गई है कि 31 मार्च तक ही मैपिंग का काम होगा, उसके बाद मैपिंग का काम नहीं होगा। इस पर जब तहसीलदार साहब से और प्रांत साहब से बात की गई तो उन्होंने एक बात ये कही कि जब तक SIR को लागू करने की तारीख नहीं आ जाएगी तब तक मैपिंग का काम होगा। एक अंदाज़ा ये है कि 12 अप्रैल का है, अब ये अंदाज़ा पूरा यकीनी नहीं है, इसलिए जब तक तारीख नहीं आएगी तब तक मैपिंग का काम हो सकता है। ये लोगों में एक बेचैनी है, इसको आप बता दें कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि तब तक हो पाए।